Hi everyone, so today we are going to start with a new chapter and the chapter name is lenses. So ये 10th standard का 7th chapter है and this carries around 5 marks. तो lenses इसमें हम बहुत सारे नए नए concepts के बारे में पढ़ने वाले जो आपने 9th में पढ़ा about concave lens, convex lens and यहाँ पर हम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और ह्यूमन आई के बारे में और बहुत सारे रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ने वाले. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. जब लेंसेज बोलते हैं तो हमें सबसे पहले याद आता है दिस थिंग्स विच इज़ कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप एंड आर स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप, बाइनोक्यूलर. तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है एंड व्हाट इज़ दैट कॉमन थिंग? द कॉमन थिंग इज लेंसेज. वी ऑल हैव लेंसेज. ये मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर माइक्रोस्कोप या इनफैक्ट दिस लेंस और स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप and even binocular, everything has got lenses. Now सबसे important ये concept है, what is lens? A lens is a transparent medium bound by the two surfaces, जिसके दो surface होते हैं, out of which at least one surface is curved, जिसमें से एक surface curved होता है और उस curved surface एक तरफ curved surface होता है और दूसरी तरफ plain हो सकता है या फिर दोनों तरफ curved surface हो सकते हैं. So this is the definition of lens. A lens is a transparent medium bound by two curved surfaces, and we have two different types of lenses. The first is concave and the second is convex. So the lens which has two spherical surfaces which are puffed up outwards, जो बाहर के तरफ puff हो गया है, and that is called as convex lens. Which is puffed up outwards is called as convex lens or double convex lens. तो ये बहुत thick रहता है. और दूसरा टाइप ऑफ लेंस होता है विच इज कॉन्केव, द लेंस विच इन विच बोथ द सर्फेस ऑफ स्फेरिकल बल्जिंग इनवर्ड्स. तो जो बल्जिंग इनवर्ड्स रहता है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्केव. सो बल्जिंग इनवर्ड्स एंड पफ्ड आउटवर्ड्स. सी द नेम इटसेल्फ सेज जो आउटसाइड पफ हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स लेंस, व्हेयरएज बल्जिंग इनवर्ड्स इज कॉल्ड एज कॉन्केव लेंस. तो कॉन्केव थिन रहता है और कॉन्वेक्स थिक रहता है. Let's see this and then इसके बाद में then we have other types. This is biconvex क्योंकि दोनों तरफ देखो this is puffed outwards, so this is biconvex and this is plano-convex. एक तरफ plane है दूसरी तरफ convex है. And this is positive meniscus, this is negative meniscus. You can understand this negative meniscus क्यों? क्योंकि this is concave and this is biconcave and this is plano-concave. So we have 6 different types of lenses: plano-concave, plano-convex, biconcave, biconvex, and negative meniscus and positive meniscus. So these are the different types of lens. ये majorly आपको ये दोनों याद रखना है, एक तो biconvex और दूसरा है biconcave. ये दोनों को अच्छे से याद रखना है. Now let's see नहीं अभी इसमें there is ये जो लेंस आपको मिलेगा ये कैसे मिलेगा? The center of spheres, जब दो spheres को combine करेंगे whose parts form the surface of the lens are called center of curvature. You can see this C1 and this is C2. C1 जो है ये sphere 1 का सेंटर है और C2 जो है sphere 2 का सेंटर है. अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आपको O जो मिलेगा that is optical center. A lens with both the surfaces spherical has two center of curvature which is C1 and C2. एंड इससे जो लेंस बनेगा दैट इज योर कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, एंड यहाँ पर जो बनेगा दैट इज कॉन्केव लेंस. सो दिस इज योर कॉन्वेकेव एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स. तो इन विच both the cases you have C1 and C2. You have two different center of curvature. Then comes is your radius of curvature. Radius is the length of C1 to A or the length of C2 to this B. It is the radius. जनरली आप जब मैथ्स पढ़ते हो तो रेडियस का मीनिंग जो होता है इसमें भी वही है. रेडाई ऑफ द स्फेयर whose parts form the surface of the lens are called as radius of curvature. So this would be radius from distance C2 to this point and C1 to this point. Now apart from this other terms are there. We need to see the other terms also. So the other term is the principal axis. ये जो
स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ किया हमने ऑप्टिकल सेंटर के तरफ से, ऑप्टिकल सेंटर से, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. एक इमेजिनरी लाइन जो जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर. जब मैं ऑप्टिकल सेंटर बोलता हूँ, सो द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ. तो जो लाइट रेज विदाउट चेंजिंग देयर पाथ जो ट्रैवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर. लिसन टू मी वंस अगेन. तो ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से लाइट रे पास होता है विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ. देखो आप, जो भी लाइट रे पास हो रहा है वो अपने पाथ को चेंज नहीं कर रहे, वो एज इट इज जा रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर. सो इस तरह से वी हैव सीन टू डिफरेंट टॉपिक्स. वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, principal axis. Now the term is principal focus. So what is principal focus? You can see this. यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर जब light rays travel हो रहा है, so all of them come and focus at one point, and that is called as principal focus. When light rays parallel to principal axis and incident on a convex lens, they converge to a point on the principal axis. तो एक point पे आके वो converge हो जाते हैं, and that point is called as प्रिंसिपल फोकस. यू कैन सी दिस प्रिंसिपल फोकस ओवर हियर. तो एंड दिस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज, अगर कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्केव लेंस. सो कॉन्केव लेंस में यहाँ पर आप देख सकते हो डाइवर्ज हो रहा है. यू कैन सी दिस, इट इज डाइवर्जिंग. सो कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. So let's see now, concave और convex lens को diverging और converging क्यों कहते हैं. You can see here, this is convex और ये सब converge कर रहे हैं, एक point पे converge कर रहे हैं. You can see this, यहाँ पर converge हो रहा है, तो इसके लिए convex lens को converging lens कहते हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is concave lens और ये convex क्या कर रहा है, diverge कर रहा है. You can see this, ये diverge हो रहा है. तो therefore concave lens is called diverging and convex lens is called as converging. This is a simple point, you can remember it easily. Next comes is focal length. So the distance between principal focus and optical center. यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is principal focus and this is optical center. तो principal focus से लेकर optical center तक जो distance है, that is called as focal length. The distance between principal focus and optical center of the lens is called as focal length. तो ये है आपका focal length. तो दिस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. तो ये डेफिनेशन जब आएगा तो आपको ये डेफिनेशंस के साथ डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है. एंड आपको ये जो अभी बताने वाला हूँ, दिस आर द रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स. और लाइट चैप्टर में रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स है. तो सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, ये देखिए, जब इंसिडेंट रे पैरेलल रहता है प्रिंसिपल फोकस से, so the refracted ray will move from focus. So what is the rule number 1? When the incident ray is parallel to principal axis, the refracted ray will pass through focus. See, the point is very clear. जब incident ray parallel आ जाता है तो refracted ray will move from focus. So this is the first point. This is the first rule. When incident ray is parallel to principal axis, the refracted ray will pass through focus. The second is, when incident ray passes through principal focus, the refracted ray is parallel to principal axis. See, when incident ray is passing through focus, the refracted ray will pass parallel to principal axis. Second rule है, first rule में आपने ये देखा, जब incident ray parallel जाएगा तो refracted ray will pass through focus. Second point ये है, जब incident ray अगर focus से pass होगा तो refracted ray will pass parallel to principal axis. So this is the second rule. Now next come to the third rule. और थर्ड रूल में ये है कि जब इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो इट विल गो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन. तो ये तीनों रूल्स को आपको याद रखना है. आई वांट एवरीवन टू प्लीज राइट दिस रूल्स इन योर नोटबुक सो दैट यू विल लर्न दिस, सो दैट दिस विल हेल्प यू व्हाइल मेकिंग रे डायग्राम्स फ्रॉम दिस चैप्टर. और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है. आई वांट एवरीवन टू गो थ्रू दिस एंड वी विल सी इन द सेकंड मॉड्यूल. थैंक यू.